ماننا پڑے گا نجیب آفندی، اپنے گھر کی عزت بچانے کے لیے تم 7 سمندر پار آ گئے، میرے پیسے لے کر آئے ہو یہاں ساتھ۔ سنسان روڈ پر گاڑی روک کر وہ سیٹ سے نوٹوں سے بھرا ہوا بیگ نکال کر باہر نکلا تھا۔ تم جیسا دلال اس بات کو سمجھ ہی نہیں سکتا، تمہارا واسطہ نہیں پڑا۔ نجیب نے بیگ کو درمیان میں رکھ کر اس آدمی کو غصے سے کہا تھا جو سگریٹ جلائے اسی کو دیکھ رہا تھا۔ میرا واسطہ عزت سے پڑا ہو یا نہ پڑا ہو، مگر تمہاری عزت دار بیوی سے ضرور پڑا تھا۔ ویسے کیسی ہے میری بیوٹیفل امارہ، یو باسٹرڈ۔ نجیب نے غصے سے اس کے منہ پر مکہ جڑا تھا اور مارتا ہی چلا گیا تھا جب تک کہ اس کا منہ خون سے نہ بھر گیا۔ معذرت، وہ ہاتھ جوڑتے ہوئے پیچھے ہوا تھا۔ یہ پیسے پکڑ اور وہ تصاویر وہ سب ثبوت دو۔ اس نے جیکٹ کی جیب سے گن نکال کر نجیب کی طرف دیکھا تھا۔ نجیب آفندی، آدھی موت تو تم یہاں آتے آتے مر گئے ہو۔ تمہاری بیوی کی عزت جو داؤ پر لگی ہوئی تھی، آدھی موت تمہیں میں ماروں گا۔ وہ دونوں ابھی گتھم گتھا ہو رہے تھے جب پاس سے ایک گاڑی ہارن دیتے ہوئے گزری۔ بیک سیٹ پر بیٹھی فائلز میں گم نسوہ اس شخص کو نہیں دیکھ پائی تھی، مگر نجیب کی نظر اس پر ضرور پڑ گئی تھی، جو کچھ سوچنے سمجھنے کی حالت میں نہیں تھا اس وقت۔ وہ گاڑی جیسے ہی گزری تھی، نجیب پر گولی چلا دی تھی اس آدمی نے، اور پیسوں کا بیگ لیے وہاں سے بھاگنے لگا تھا جب نجیب نے اس کی ٹانگ پکڑ لی تھی، اور کچھ لوگ بائکس پر آ گئے تھے۔ مارو اسے، گاڑی کو ڈیمیج کر دو پوری طرح۔ اس آدمی نے بیگ کو بائک پر رکھ کر اپنی بائک سٹارٹ کر دی تھی اپنے لوگوں کو حکم دینے کے بعد۔ ڈیم اٹ، اس آخری آدمی کو بھی بری طرح زخمی کر دیا تھا نجیب نے۔ ان سب کو وہ وہاں سے بھگا چکا تھا، مگر خود زخمی اپنی گاڑی کے ساتھ ٹیک لگائے زمین پر جیسے ہی بیٹھا، اس کے لبوں سے بے اختیار ایک ہی نام نکلا تھا، نسوہ۔ میں جانتا تھا تم زندہ ہو۔ سر، آپ کو تو گولی لگی ہے، کتنا خون بہہ رہا ہے، اب چلیے میرے ساتھ۔ زخمی نجیب کو کندھے سے سہارا دیتے اس لڑکی نے جیسے ہی اٹھانے کی کوشش کی تھی، نجیب نے اس کا ہاتھ جھٹک دیا تھا۔ میں ٹھیک ہوں، I'm all right، چلا جاؤں گا میں خود۔ سر، آپ کو ٹریٹمنٹ کی ضرورت ہے، چلیں میرے ساتھ۔ ایک بار میں سمجھ نہیں آتا؟ میں نہیں جا سکتا، مجھے اسے ڈھونڈنا ہے، اسے دیکھا ہے میں نے یہیں۔ وہ غصے سے بولتے سنسان روڈ پر یہاں وہاں نظر دوڑانے لگا۔ سر، آپ اسے کسے ڈھونڈ رہے ہیں؟ آپ کو سمجھنا چاہیے، میں ایسے آپ کو اکیلا چھوڑ کر نہیں جا سکتی۔ اس بار اس نے جتنی سختی سے نجیب کو کہا تھا اور اس کا ہاتھ پکڑ کر اپنی گاڑی کی طرف زبردستی لے جانا شروع کر دیا تھا۔ ہاؤ ڈیئر یو، مجھے ہاتھ لگانے کی ہمت، پلیز بیٹھ جائیے۔ وہ جس قدر التجا سے بولی تھی، نجیب کو کچھ پل کے لیے نسوہ کی آواز اور اسی کی پرچھائی نظر آئی تھی اس لڑکی میں۔ اس کا 3 پیس ڈریس بری طرح سے خراب ہو چکا ہوا تھا، خون سے بھر چکا تھا، بازو سے نکلتے خون کی وجہ سے وہ فرنٹ سیٹ پر بیٹھ گیا تھا۔ تم بس میرا ٹائم ویسٹ کر رہی ہو لڑکی، اگر میں نے آج اسے نہیں ڈھونڈا تو پھر کبھی نہیں ملے گی وہ مجھے۔ وہ بڑبڑا رہا تھا، اور جب موبائل اٹھایا تو وہ بھی بند ہو گیا تھا نیچے گرنے کی وجہ سے۔ آپ انہیں بعد میں بھی ڈھونڈ سکتے ہیں، مگر اگر وقت پر یہ گولی نہ نکالی گئی تو آپ کی جان بھی جا سکتی ہے۔ وہ اور آرام سے جواب دیتے ہوئے گاڑی سٹارٹ کر چکی تھی، بات کرتے ہوئے نظریں جھکائے ہوئے تھی۔ مغربی لباس میں دیکھ کر نجیب حیران ضرور ہوا تھا۔ شلوار سوٹ میں، گلے میں دوپٹہ لیا تھا، چہرے پر گلاسز لگی ہوئی تھیں جو نظر کی تھیں، جسے بار بار وہ ٹھیک کر رہی تھی۔ وہ جس قدر دکھنے میں نرم مزاج لگ رہی تھی، اسی قدر اس نے فاسٹ ڈرائیو کی تھی اس وقت۔ مجھے ہسپتال لے جانے کا کوئی فائدہ نہیں، یہاں سٹرائک چل رہی ہے، سب کچھ بند ہے آج کے دن۔ جی مجھے معلوم ہے سر۔ وہ سگنل پر جیسے ہی رکے تھے، اپنے دوپٹے کا ایک حصہ کاٹ کر اس نے نجیب کے زخمی بازو پر باندھ کر اسے اور حیران کیا تھا۔ اس سے خون بہنا کم ہو جائے گا۔ ویسے کسے ڈھونڈ رہے تھے آپ؟ کچھ بتائیے، میں اپنے بھائی سے کہوں گی، وہ چند منٹوں میں ڈھونڈ نکالے گا انہیں۔ یہاں میں سالوں سے ڈھونڈ نہیں پایا، اور تمہارا بھائی منٹوں میں ڈھونڈ نکالے گا؟ نائس جوک۔ اس کے لہجے میں طنز تھا جس پر غصہ ہونے کی بجائے وہ لڑکی ہنستی تھی۔ جب گاڑی ہسپتال کے باہر رکی تو سب کچھ بند تھا، روڈز خالی تھے، پارکنگ خالی تھی، اور نجیب نے اس لڑکی کو دیکھا اور بے ساختہ ہنس دیا تھا اس لڑکی کی خاموشی پر۔ اس کنٹری میں سٹرائک کا مطلب سٹرائک ہی ہوتا ہے بچے۔ اس آخری لفظ پر وہ بہت شاکڈ ہوئے تھے، مگر اس وقت سب سے زیادہ حیران ہوئے تھے جب گارڈ نے گیٹ اوپن کیا تھا ہسپتال کا۔ وہ گاڑی جیسے ہی اندر داخل ہوئی تھی، وارڈ بوائے اسٹریچر لے کر پہلے ہی کھڑے تھے۔ انہیں جلدی سے آپریشن تھیٹر میں لے جائیں، میں وہیں آ رہی ہوں۔ وہ اسٹریچر جیسے جیسے ہاسپٹل میں داخل ہوا، وہ لوگ نجیب کو اندر لے گئے تھے جو بضد ہو گئے تھے۔ تب اس لڑکی نے نجیب کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیا۔
प्लीज़ सर, जितना जल्दी अंदर जाएंगे उतनी जल्दी ही ठीक होकर वापस घर अपनी फैमिली में भी जा सकेंगे। वो अभी बात कर रही थी जब दो डॉक्टर पीछे से आकर उनके पास रुकी थी। डॉक्टर हुरब, सब ठीक तो है? जी, आप इन्हें ऑपरेशन थिएटर में ले जाएं, ये ऑपरेशन मैं ही करूँगी। डॉक्टर हुरब? नजीब ने एक बार फिर से उस लड़की का नाम लिया था जिसने हल्की सी मुस्कुराहट पास की थी। जी डॉक्टर हुरब, सर अब आप बेफिक्र होकर अंदर जाइए। ऑपरेशन थिएटर में वो वाही डॉक्टर थी जो सबसे ज़्यादा कॉन्फिडेंट थी, मगर कंधे से गोली निकालने लगी थी तो उसके हाथ कांप रहे थे। नजीब की बंद आंखें उसे एक अलग सा दर्द महसूस करने पर मजबूर कर रही थीं। डॉक्टर हुरब, आर यू ऑल राइट? अगर आप कंफर्टेबल नहीं हैं तो हम नो नो इट्स ओके। जख्म पर स्टिचेस करने के बाद वो मास्क उतारे वहीं खड़ी थी कुछ देर। जब उन्हें होश आ जाए तो मुझे इन्फॉर्म कर दीजिएगा, लाजमी। वो ये कहकर चली गई थी। जी मामा, मैंने नमाज पढ़ ली थी, खाना भी खा लिया, अभी कुछ देर पहले ही ऑपरेशन से फारिग हुई हूँ। जी मामा, आई एम सो सॉरी, मुझे थोड़ा लेट हो जाएगा। भाई के गार्ड साए की तरह मुझ पर सवार होते हैं, मेरी सिक्योरिटी की फिक्र मत कीजिए। डॉक्टर हुरब, वो पेशेंट को होश आ गया है। मामा मुझे अभी जाना होगा, सो सॉरी, लव यू। अपनी मेडिसिन वक्त पर खा लीजिएगा, भाई को भी बता दीजिएगा वरना हॉस्पिटल सर पर उठा लेंगे। बाय, अल्लाह हाफिज। वो जल्दी से लैब कोट पहनते स्पेशल वार्ड की तरफ बढ़ी जिसके साथ वाला रूम उस नए पेशेंट को अलॉट किया गया था। तुम लोगों को समझ नहीं आ रहा कि मुझे अभी जाना है? कांच टूटने की आवाज ने हुरब को अलर्ट कर दिया था। जल्दी से दरवाजा खोले वो अंदर दाखिल हुई। सर, यू क्या किया है मुझे? मैंने कहा था। आप पूरे अस्पताल को डिस्टर्ब कर रहे हैं सर, आप खामोशी से लेटे रहें। सिस्टर, इन्हें सूप पिलाकर मेडिसिन। मैं कोई छोटा बच्चा नहीं हूँ जो किसी के हाथों से खाऊंगा पीऊंगा। मेरा मोबाइल कहाँ है? फ़ोन करना है मुझे यहाँ से, फ़ोन करना है मुझे, जाना है मुझे यहाँ से। नजीब ने हुरब को मुकम्मल तौर पर इग्नोर करके पास खड़ी नर्स से कहा था, सिस्टर आप जाएं, ये मुझे दीजिए। वो सूप का बाउल पकड़े सामने चेयर पर बैठी थी जो बेड के सामने थी। आप जाना चाहते हैं तो शौक से जाइए, मगर हमारे अस्पताल की रेप्यूट खराब करके नहीं जा सकते। आज आप आज का दिन इस बेड से हिल नहीं सकते जब तक आप ये पीकर मेडिसिन नहीं खा लेते। सर, कोई ज़बरदस्ती है? तुम जानती नहीं हो मैं कौन हूँ। मेरे एक इशारे से यह अस्पताल का नामो निशान, तुम्हारी नौकरी सब खत्म हो जाएगा। आपने इशारा करना है सीधे हाथ से। उस सीधे हाथ से इशारा करने के लिए इस हाथ का ठीक होना ज़रूरी है सर, ट्राई कीजिए। और हुरब की बात सच साबित, जब नजीब से सीधा हाथ उठाया ना जा सका। सी, अब मुंह खोलिए। कुछ सेकंड में नजीब ने हार मानते हुए मुंह खोला तो वो आहिस्ता आहिस्ता सूप पिलाना शुरू हो गए थे स्पून से। वैसे आप ढूंढ किसे रहे थे? क्यों? मेरी बीवी को। क्यों? वो आपको छोड़ गई हैं? नहीं, मैंने उसे अपनी जिंदगी से निकाल दिया था। नजीब ने सरगोशी की तो हुरब की आंखों में एक अलग नफरत उभरी थी। तो अब आप क्यों ढूंढ रहे हैं उन्हें? जाने वाले वापस आ जाते हैं मगर निकाले जाने वाले लौट कर वापस नहीं आते। उनकी आना उन्हें पीछे मुड़ने नहीं देती सर। वो तुम्हारा शौहर है, वो समझेगा नहीं तुम्हें तो और कौन समझेगा? निस्वा, ये बीमारी कोई आम बीमारी नहीं है। इस बीमारी में घरों के घर उजड़ते देखे गए हैं। जाने वाले के बाद एक दुनिया मर जाती है जिंदा रहने वालों की। पानी का ग्लास निस्वा के हाथ में थमाकर उन्होंने कुछ टैबलेट्स भी साथ ही दी थी उसे, जो खाने के बाद निस्वा ने पानी का सिप लिया था। तुम नहीं समझ सकती सहरिश, वो शख्स जुनून की हद तक इश्क करता है मुझसे। नजीब की मोहब्बत में वो शिद्दत है कि अपने बेटे को भी कभी कभी बर्दाश्त नहीं करते। हाँ, बेडरूम मामला तो बहुत डिस्टर्ब हुए होंगे। डॉक्टर दोस्त ने टीज करते हुए निस्वा का मूड चेंज करना चाहा था, इसलिए तुम्हारे पास आई हूँ। मुझे और मेडिसिन दो जिसे खाकर इतनी एनर्जी आ सके कि ये बार बार सर दर्द ना रहे। मैं नजीब को और ज़्यादा खुद से दूर नहीं कर सकती, मैं इस दूरी में और पागल हो रही हूँ। सो प्लीज़ कुछ और भी दो मुझे। निस्वा, रिलैक्स, ये कैंसर अभी स्टार्ट है। जो इलाज अभी शुरू किया ये तो कुछ भी नहीं है जो अजियत आगे जाकर तुम्हें मिलेगी। और तुम कह रही हो कि अभी से बोझ डाल दूं दवाइयों का। चंदा, ऐसे नहीं होता, इसलिए कह रही हूँ कि नजीब भाई को बता दो। निस्वा हाथ छुड़ाकर उठ खड़ी हुई थी। ऐसा मुमकिन नहीं है। तुम और बाकी सब डॉक्टर्स मुझे यकीन दिला रहे हो, तसल्लियाँ दे रहे हो, मगर मैं जानती हूँ कि इसमें सर्वाइवल के ऑप्शन। चुप। हम कुछ हफ्तों में इस पर काबू पा लेंगे निस्वा। ये मुकम्मल जाएगा नहीं, मगर ये फिर इस तरह भी तंग नहीं करेगा। बस इलाज पर गिरफ्त मजबूत करनी है हमने। सहरी से कुछ देर और बातें करके वो वापस गाड़ी की तरफ आ गई थी और उस दिन घर जाने की बजाय उसने नजीब के दफ्तर का रास्ता लिया था।
आज मैं नजीब को सरप्राइज़ देना चाहती हूँ, मगर ऑफिस जाकर पता चला नजीब अपनी सेक्रेटरी के साथ लंच पर गए हैं। मुझे पहली बार अपने 5 साल की शादी में अपने शोहर की ज़ात मशकूक लगी थी, मगर मैं इस बात को दरगुजर कर चुकी थी क्योंकि उस सब में मेरी ज़ात शर्मिंदा हो रही थी। मैं अपने शोहर के साथ ज़्यादती कर रही थी। घर जाकर मैं सीधा मन्नान के बेडरूम में चली गई थी। वो अपने खिलौनों में इतना मसरूफ़ था कि उसे मेरे आने की खबर तक ना हुई, पर ऐसा मुझे लगा था। मैं जैसे खामोशी से उसके बेड पर जाकर बैठी, उसे गले लगाने लगी थी। वो पलट कर मेरे गले खुद ही लग गया था। मेरा बेटा, मेरी ज़िंदगी। इतनी सी उम्र में उसे मालूम हो जाता था कि मैं कब कमरे में आई हूँ और कब कमरे से बाहर गई हूँ। मन्नान में मेरी जान बसने लगी थी। दादी कहती हैं मन्नान का बचपन नजीब जैसा रहा, और उन्होंने तो यहाँ तक कहा कि मन्नान नजीब की छुई बनने लगा है, देखने में भी और शख्सियत में भी। दादी, बस नजीब की तरह बिजनेसमैन ना बने। आप नहीं जानती नजीब का वो रूप, इतने सख्त और जालिम बिजनेसमैन है वो। मुझे याद है, दादी बेसाख्ता हंस दी थी मेरे साथ। मैं बस नजीब के आने का इंतज़ार कर रही थी और साथ साथ अपनी दवाइयों को खाकर वहीं मन्नान को अपने साथ सुलाने लेट गई थी। कुछ देर बाद आंख खुली तो खुद को नजीब के साथ सोते हुए पाया। नजीब, आप कब आए? बस अभी। मैंने कितनी बार कहा है कि पूरा दिन जहाँ मर्जी गुजारो, मगर रात को तुम मुझे मेरे पास ही मिलो निस्वा। और फिर मैंने वो सवाल पूछा जो पूछने के लिए मैं बेचैन थी। आज आप कहाँ गए थे? ऑफिस में फ़ोन किया तो नहीं थे? मैं कुछ क्लाइंट्स के साथ कंस्ट्रक्शन साइट पर गया था। झूठ। झूठ जब किसी रिश्ते में आ जाए तो समझ लीजिए कि रिश्तों में मोहब्बत कमज़ोर पड़ गई। वो दिन था जिस दिन मैंने अपने शोहर को उसके हाल पर छोड़ दिया, क्योंकि मैं खुद भी पुरुमीद नहीं थी कैंसर जैसी बीमारी से बच जाने में। मगर अल्लाह को कुछ और ही मंजूर था। जिस दिन सहरिश ने मुझे ग्रीन सिग्नल दिया, वो दिन मेरी ज़िंदगी का सबसे खूबसूरत दिन था। मुझे याद है, जिस दिन मैं हॉस्पिटल से घर आई थी, पूरे मेंशन को सजे संवरे देखकर मैं दंग रह गई थी। जहाँ तक मुझे याद था, आज के दिन कोई त्यौहार, कोई फंक्शन नहीं था। जब मैं मुलाजमों के झुरमुट से गुजरते हुए ऊपर जाने लगी थी, उस वक्त मेरी नज़र दादी के कमरे में पड़ी जो रो रही थी मुझे देखकर। दादी, क्या हुआ? इस तरह से क्यों रो रही हैं? मन्नान तो ठीक है, आपको क्या हुआ है? कुछ हुआ है क्या? किसी ने कुछ कहा? मैं बेडरूम जाने की बजाय सीधा दादी के कमरे में आ गई और नॉन स्टॉप सवालात पूछने लगी। दादी का हाथ पकड़कर मैं उन्हें उनके रूम में ले गई। दादी को जैसे ही बेड पर बिठाकर उनके पास बैठी, वो मेरे गले लगकर ज़ारों कतार रोने लगी और एक ही बात कह रही थी वो, अपना घर बचा लो बेटा, बचा लो अपने घर को। दादी, आप क्या कह रही हैं? क्या हुआ है मेरे घर को? निस्वा, अपने शोहर को बचा लो, किसी तीसरे को अपना घर बर्बाद मत करने दो। और जब मैं उनकी बात सुनकर उनकी आंखों में देखने लगी तो मुझे उनकी आंखों में देखकर एक बात समझ आई, जो पिछले कुछ माह से नजीब की लापरवाही मुझे समझाने की कोशिश कर रही थी और मैं दवाइयों के नशे में हर एक हिंट को दरगुजर कर रही थी। नजीब कहाँ है? मेरे मुंह से बेसाख्ता निकला था। ऊपर कमरे में। निस्वा, दादी रोते हुए मेरे दोनों हाथों को अपने माथे से लगा चुकी थी पकड़कर। अब के वो दर्द जो दादी की आंखों में था, वो मेरे दिल में शुरू हो चुका था होना। चढ़ती हुई हर सीढ़ी मेरे कदमों से मेरी जान निकाल रही थी। मैं आज अपने कमरे में जाते हुए डर रही थी, घबरा रही थी। मेरा सांस ऐसे आ रहा था जैसे अभी बंद हो जाएगा। रीलिंग का सहारा लिए मैं अपने बेडरूम तक पहुंची। जब अंदर दाखिल हुई तो दरवाज़ा बंद किए उस पर सर रख लिया, आंखें बंद कर ली, क्योंकि नजीब के कपड़े बिस्तर पर पड़े देख लिए थे मैंने। मुझे देखते ही वो एक ही जुमला बोले थे, वो जुमला जो कोई भी बीवी कभी नहीं सुनना चाहेगी, वो जुमला जो आपके हंसते बसते घर को आग लगा दे और कोई आग लगाने वाले को कुछ कह भी ना सके, कुछ भी नहीं। मैं दूसरी शादी करना चाहता हूँ, मेरा शरई हक है निस्वा, आप मुझे रोक नहीं सकती। दिल में हजार गिले शिकवे थे, हजार बातें थी, पर मैं सिर्फ अपने शोहरे नामदार का चेहरा ही तकती रह गई। मेरी ज़िंदगी के 5 साल जो मैंने उस शख्स के साथ गुजार दिए थे, मुझे जहाँ जिस रास्ते पर चलाया गया मैं चलती रही। नजीब ने दिन को रात कहा तो मैंने रात समझा, रात को सुबह कहा तो मैंने सुबह समझ ली। मैंने इन 5 सालों में कभी किसी भी एक बात के लिए नजीब को इनकार नहीं किया। और जब नजीब ने कहा कि मैं उनको उनके हकूक़ नहीं दे पाई, तो मेरी ज़ुबान पर बीमारी का लफ्ज़ आते आते मेरी रह गया था। क्या मियाँ बीवी का रिश्ता बिस्तर की इन चादरों तक मुकीम रहता है? वो सवाल जो मैं खुद से पूछ रही थी, मैं उस पल नजीब से पूछना चाहती थी, मगर मेरे शोहर का खूबसूरत चेहरा मुझे सब कुछ ही भुला चुका था।
میں نے آگے بڑھ कर उन्हें खुद से लगाया था। नजीब के पाँव कमरे से बाहर जाते रुक गए थे। उस दिन हमारी शादी में पहली बार मैंने अपनी मोहब्बत, कस्में और वादों से ज़्यादा अपने वजूद को अपने शोहर के सामने पेश किया, अपनी इज्जत नफ्स को, अपनी अना को। वो मोहब्बत भरे कुछ घंटे नजीब के साथ गुजारे तो यकीन हुआ कि मैंने वापस पा लिया है अपने शोहर को। उसके सीने पर सर रखकर मैं एक गहरी नींद सो चुकी थी, इस बात से बेखबर कि मैं लड़ने से पहले ही हार चुकी थी। खुद को तन्हा पाया उस बिस्तर पर तो अपना वजूद किसी बाजारी औरत से कम नहीं लगा था मुझे। उस बिस्तर के कवर में खुद को लपेटे, बाथरूम के शावर में खुद को उस शीशे में देख रही थी। अपने आप से एक अजीब सी नफरत होने लगी थी मुझे। क्यों? मैंने अपने शोहर को अपना आप सौंपा था तो क्या हुआ अगर वो मुझे बाजारी बना गया? मैं अपने ही जवाब से मुतमईन नहीं थी। क्यों? या अल्लाह क्यों? मैं तो पिछले 2 साल से इस बीमारी की अजियत में थी। या अल्लाह, मैंने किसी नामहरम को नहीं देखा, बात नहीं की, उसकी चाहत नहीं की। मैंने बस अपने शोहर को सब कुछ समझा। मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ? पहले वो बीमारी और फिर शोहर की बेवफाई। कैसे बर्दाश्त कर सकूंगी मैं ये सब? बीमारी तो सह गई थी मैं, पर सौतन अपने रिश्ते में शिराकत, ऐसा क्यों हुआ? मैंने उस दिन पहली बार अपने रब से शिकवा शिकायतें की, किसी नासमझ बच्चे की तरह। बाथरूम की वॉल के साथ टेक लगाए कितने घंटे मैं रोती रही थी, कभी अपनी किस्मत पर तो कभी हमारे रिश्ते के नसीब पर और कभी अपने मन्नान पर। वो कुछ दिन अजाब थे। मैं और मेरा बेटा एक कमरे में बंद होकर रह गए थे। मैं नजीब से ज़्यादा उस फैमिली पर नाराज़ थी जो बार बार मुझे आकर कह रहे थे कि मैं स्वागत करूं नजीब की दूसरी बीवी का। वो एक बहू की जिम्मेदारियां बता रहे थे मुझे, मगर एक बीवी के अरमान कुचल कर वो मुझे नसीहतें ही कर रहे थे बस। उन्हें मालूम न था कि मैं नजीब की बीवी ही नहीं, उनके बच्चे की माँ भी हूँ, उनकी मोहब्बत भी हूँ। कैसे बर्दाश्त कर लेती मैं ये सब कुछ? उस रात के बाद मैंने खुद को मन्नान के रूम में शिफ्ट कर लिया था। मेरा बेटा जो इतना मासूम था, फिर भी उसे मालूम था कि मेरी आंखों के आंसू आकर पहुंचता। मेरा मन्नान, अपने शोहर को निकाह के दिन मैंने इतना खुश देखा तो वो बीवी जो इस उम्मीद में थी कि उसका शोहर एक बार उसकी मोहब्बत में पशेमान उसे मनाने ज़रूर आएगा, मगर वो शोहर नहीं आया। वो शोहर अपनी दूसरी बीवी के साथ इतने घंटे गुजारने के बाद जब मेरे सामने आया तो मेरे लब खामोश थे, मेरी आंखें बयान कर रही थी मेरा दर्द, मगर वो बेदर्द जाने क्यों इतना जालिम बन गया था, जो अपनी ही बीवी का हाथ पकड़े सारी महफिल में उसे बेआबरू कर चुका था। वो हकूक वो हकूक जो बंद कमरों में रहने चाहिए थे, वो उस शख्स ने 10 लोगों में बयान करके मेरी इज्जत नफ्स को अंदर तक डैमेज कर दिया था। वहाँ भी नजीब का गरूर कम नहीं हुआ तो हमारे बेटे पर इल्ज़ाम लगा दिया। कैसे कोई मर्द अपनी ही औलाद को कसूरवार ठहरा सकता है? उस दिन मैंने औरत को ही दूसरी औरत को चुप करवाते हुए, उसे दबाते हुए देखा था, और फिर मेरी नज़र उस नई नवेली दुल्हन पर पड़ी, मेरे शोहर की दूसरी बीवी, मेरे शोहर की सेक्रेटरी। कितना निखार दिया था उसे मेरे नजीब की मोहब्बत ने। कहाँ गलत होती है बीवी, कहाँ बदगुमान हो जाता है उसका शोहर उससे, कहाँ रिश्ता खराब होता है, कहाँ मौका देती है बीवी के शोहर सोतन ले आए। वो मुझे उस लम्हे मेरे हाल पर नहीं छोड़ रहे थे, वो मुझे अपनी ज़िंदगी से, अपने घर से निकाल रहे थे, ताकि मैं रेंगते रेंगते वापस उनके कदमों में आऊं और अपना लूं उस औरत को जिसने मेरा शोहर छीन लिया था मुझसे। नहीं था इतना ज़र्फ मुझ में, नहीं थी निस्वा इतनी मजबूत, निस्वा बहुत कमज़ोर थी, इसलिए तो शोहर को वापस नहीं पा सकी थी। अपने बेटे का हाथ पकड़कर मैं अपने ससुराल से नहीं, उस जन्नत से बाहर निकाली गई थी जिसे मैंने सींचा था अपने खून से, अपनी मोहब्बत से। मुझे नहीं पता था कि इतनी मोहब्बत, इतने सालों की मोहब्बत भी नहीं देखते मर्द जब जालिम बनने पर आते हैं। मामा वाओ, इतनी मज़ेदार खुशबू आ रही है, आज क्या स्पेशल बन रहा है? पूरब किचन में दाखिल होते ही शौक हुई जब उसने अपनी माँ और बड़े भाई को एक साथ कुकिंग करते हुए देखा था। डबल वाओ, क्या आज कोई स्पेशल ओकेजन है? आज हमारी गुड़िया का बर्थडे है। वो दोनों साइड पर हुए तो केक पर पूरब की नज़र पड़ी, वो दोनों के गले लगी थी भागते हुए। सीरियसली, मैं पूरा दिन ऐਵੇਂ ही देवदास बनी घूम रही थी कि आप दोनों को मेरी सालगिरह याद ही नहीं। पूरब की आंखें साफ करके निस्वा ने उसके माथे पर बोसा लिया था। यस ब्यूटीफुल लेडीज, बस चलें केक काटते हैं। डाइनिंग हॉल में जैसे ही वो दोनों आए थे, पूरब को लेकर सब मुलाजिम और वर्कर्स पहले ही सजे हुए टेबल के पास थोड़ा पीछे खड़े थे। हैप्पी बर्थडे मिस पूरब, चलो बेटा केक काट लेते हैं।
मन्नान जैसे ही सामने आया था, मुलाजिम डर के पीछे हुए थे और निस्वा ने मन्नान को आंखों से इशारा किया, जिसके बाद उसके चेहरे पर थोड़ी सी मुस्कान आई तो उसने तमाम मुलाजमीन को आगे करके हुरब को विश करने की परमिशन दे दी। पहले डरा देते हैं भाई और फिर कहते हैं कि आगे आ जाओ, मामा देखा ना आपने, आउच। हुरब का कान जैसे ही खींचा था उसने, निस्वा दोनों को एक दूसरे से पीछे कर चुकी थी। माँ आपने देखा कैसे टांग खींच रही है, आपकी इतनी बड़ी टांग कैसे खींच सकती हूँ मैं, मामा इतने बड़े क्यों हो गए हैं ये, हाँ अब तो मैं भी कंधे से नीचे ही आती हूँ इसके। निस्वा और हुरब ने जैसे ही पॉइंट आउट किया तो मन्नान के चेहरे से बेसाख्ता हंसी आई थी। केक काटने के बाद हुरब ने सबसे पहले निस्वा को खिलाया और फिर मन्नान को, और फिर मन्नान ने हल्की सी बाइट निस्वा की तरफ की थी। माथे पर बोसा देने के बाद उसने अपने गले से लगाया था अपनी माँ को, वो ऐसे ही था, कोई मौका नहीं छोड़ता था। माँ की आगोश में उसे सुकून मिलता था, उसका बेचैन दिल चैन पा लेता था। वैसे कितने बड़े हो गए हो। निस्वा ने सर उठाकर मन्नान के चेहरे की जानिब देखा था। अपने जवान बेटे को पूरे जोबन में देखकर उसको एक ही चेहरा नजर आता था उसमें कभी कभी, और वो उसके शौहर का चेहरा था।